Hi friends, how are you? I'm your faculty, Dr. Zishanur Azim. I passed my MBBS from Nalanda Medical College, Patna. Then I did my MD in microbiology from AIMS Jodhpur. And then I was a rank 2 holder in DM infectious disease. Right now I am working as an assistant professor and a chief consultant at Vadyam Infectious Disease Hospital. So what I will teach you today is the starting of, or you can say the beginning of our microbiological series. So I will teach you today the Staphylococcus. So I will tell each and everything about the Staphylococcus, your INICET PYQs, your NIT PG PYQs, your MBBS things or practical vivas, anything. Everything I will teach you today. Okay. So shall we start? So we are starting the first topic. Staphylococcus. This is a very important topic of microbiology. It is the start of bacteriology and this is very important, Staphylococcus. So why we call it a Staphylococcus? Okay, now we will just split it into two parts. The first you need to understand is Staphylococcus. Staphylococcus is staph and coccus. Coccus means circle, circular, and staph means bunch of grapes, यानी अंगूर का गुच्छा in Hindi we say. ठीक है? So when you look at the picture of Staphylococcus, you will see this, the bunch of grapes. So it always present in the cluster. This is your gram staining, okay? And look into that. They will always present in cluster. So it has been, this Staphylococcus aureus has been discovered by Sir Alexander Oxton. And the name Staphylococcus aureus has been coined by Rosenbach. So you don't need to learn all these things. Just first, only you need to understand Staphylococcus, whenever it present in the cluster, and it looks like grapes. That is a bunch of grapes. Okay. Now, first you need to understand Staphylococcus. Okay, Staphylococcus comes from certain family and the family name is called as Micrococcacia. So you don't need to learn this Micrococcacia. I'm just telling you, just listen it. So in Micrococcacia there are two organisms. First is Staphylococcus and the second is a Micrococcus. So Micrococcus is not lethal. It doesn't cause too many infection. It is dormant. But still you need to understand that in Micrococcacia there is two organisms. First is Staphylococcus. It is very lethal and the second is your Micrococcus. Okay, these both are catalyst positive. The first start of your microbiology comes with this. Whether the organism is gram positive, whether the organism is gram negative, whether the organism is catalyst positive, whether the organism is catalyst negative. So I will tell you, first I will tell you the tree. Just listen to it. Now understand. First, first you need to understand whether the organism is gram positive or gram negative. If the organism is gram positive, organism, then why we call it as a gram positive? I will take this lecture in your general microbiology class. So we say it as a gram positive because the cell wall of this organism are thick. So the stains when you put inside, it doesn't go outside. So it remains in these walls. So it looks positive, means blue or purple. Why we call it a gram negative? The gram negative means the organism, the cell wall are not that much thick. It has pores. So when you put stains on these bacteria, through these pores, the stains goes outside and they don't contain the stains. Means कि जब आप इस पे स्टेन डालते हो ग्राम पॉजिटिव वाले पे तो उसमें पोर्स वगैरह नहीं होते, वो थिक होता है, तो वो स्टेन्स को अंदर ही रख लेता है जिसकी वजह से वो पर्पल दिखता है. लेकिन जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है वो स्टेन्स को अंदर नहीं रखता, उस पे पोर्स होते हैं जो कि वो स्टेन्स बाहर चला जाता है और वो नेगेटिव लगता है, मतलब वो पर्पल नहीं दिखता है, वो आपको रेड दिखता है. ठीक है, जब आई विल टेक योर जनरल माइक्रोबायोलॉजी क्लास आई विल टेल यू एवरीथिंग. सो ओके, नाउ दिस इज क्लियर. ग्राम पॉजिटिव इज क्लियर. If the organism is gram positive, then the second
question comes ki whether it is catalase positive or catalase negative. So the organism is gram positive, then whether it is catalase positive or catalase negative. So in case of Staphylococcus, it is catalase positive. Then there are certain organisms which are cocci also, which are gram positive also, but you need to understand that they are catalase negative. So why I put this slide, to just tell you the importance of catalase for this gram positive organism. So gram positive है, gram positive का catalase positive है या नहीं? कैटलेस पॉजिटिव है तो हम स्टेफ की तरफ आगे बढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बेसिस पे. अगर कैटलेस पॉजिटिव नहीं है तो हम स्ट्रेप्टोकोकस की तरफ आगे बढ़ते हैं. ये सोचिए कि यस इट कुड बी अ स्ट्रेप्टोकोकस, ये कोकाई है, ग्राम पॉजिटिव है और कैटलेस नेगेटिव भी है. ओके, देन अब स्टेफिलोकोकस के बारे में हम ये समझेंगे कि ये क्या है. अब यहाँ पे क्लिनिकल एस्पेक्ट और एपिडेमियोलॉजी कम्स. सो एपिडेमियोलॉजी क्या होगा? व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस? जस्ट look into this slide. So first, अगर आप स्टेफिलोकोकस को देखोगे तो स्टेफिलोकोकस कहीं बाहर प्रेजेंट नहीं होता, ये आपके नोज के पास ही कॉलोनाइज करता है. कॉलोनाइज का मतलब ये होता है कि द मीनिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन इज कि इट रिमेन्स ऑन दैट एरिया, मीन्स कि इट कॉलोनाइज योर नोज, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इट कॉलोनाइज योर हैंड्स, इट कॉलोनाइज योर जेनिटल एरियाज ऑफ फीमेल. देखो ये कॉलोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट इन्फेक्शन में. सो आई टोल्ड यू कि 20 to 25% मोस्टली कॉलोनाइजेशन आपके नोज पे रहता है, फिर आपके हैंड्स पे रहते हैं, फिर जेनिटल एरियाज पे रहते हैं. आपको समझ में आ गया? तो आप एक चीज जब आप वार्ड में जाओगे या इंटर्न बनोगे या दोज हु आर डूइंग इन वार्ड और आईसीयूज, दे अंडरस्टैंड द लिथैलिटी ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस. सो मान लो आप आईसीयूज में हो और पेशेंट है, पेशेंट को आपको ये दिख रहा है कि पेशेंट इज बेड रिडन, उसको बेड सोर हो गया, पेशेंट इज बेड रिडन, उसको लेग पे या बॉडी पे कहीं पे पस जनरेटिंग इन्फेक्शन है. सो आपको ये पता, तब आप वहां से कोरिलेट कर सकते हो कि ये इन्फेक्शन कहां से आया होगा. पेशेंट तो मूव कर नहीं रहा है, तो हॉस्पिटल्स में जनरली जो इस टाइप के पस जनरेटिंग इन्फेक्शन होते हैं, जो आईसीयूज, मोस्टली आईसीयूज पेशेंट्स में, वो आपको स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होते हैं. और वो कहां से आता है? वो हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, इनके हैंड्स में होते हैं. तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आज एस्पेक्ट चल रहा है डिफरेंट एरियाज में, चाहे आप सर्जरी वार्ड में जाओ, चाहे मेडिसिन वार्ड में जाओ, चाहे माइक्रोबायोलॉजी क्लास करो, चाहे पैथोलॉजी करो, वहां पे हैंड हाइजीन कहते हैं. एंड आप लोगों ने पढ़ाई होगा 7 स्टेप ऑफ हैंड हाइजीन. तो इसीलिए हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो 20 to 25% of the colonization of Staphylococcus aureus is present inside the nose, and the other aspect of colonization is your hand and in the genital regions. So this picture depicts all these things. This is your nasal areas, this is your hand, and the patient is getting infection and they are having the abscess and the colonization in the genital areas. Okay, now look into the next slide. So now we will discuss the virulence factor of Staphylococcus aureus. This is very important. First, I will just take the theoretical aspect of virulence factor. You need to understand कि what are the different virulence factor of Staphylococcus aureus. कितने सारे आपको virulence factor इसमें हैं, क्या हैं, कहाँ पे होते हैं, वो आप पहले पढ़ोगे, फिर मैं आपको उसको इमेज बेसिस पे सब पढ़ाऊंगा, तब आपको पूरा virulence factor completely clear हो जाएगा. चलो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल होता है. तो ये तो हमने बचपन से पढ़ रखा है, ठीक है. तो जो सेल वॉल है, कुछ इसके वायलेंस फैक्टर सेल वॉल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. मींस कि देयर आर सर्टेन वायलेंस फैक्टर व्हिच इज इनसाइड द सेल वॉल ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस. सो उसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेप्टिडोग्लाइकेन. तो ये क्या इसका रोल है? पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोवाइड द थिकनेस एंड रेजिडिटी टू दिस बैक्टीरिया. एंड साथ में वो ये सारा जो मैं है प्रोसेस, इसका जो लास्टली फंक्शन है वो एक ही रोल प्ले करता है, आपके इम्यून सिस्टम से इसको बचाना है. हाउ दे कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्यून सिस्टम, फ्रॉम योर इम्यून सिस्टम. ठीक है, ओके. द फर्स्ट इज द पेप्टिडोग्लाइकेन. ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. देन इट हैज अ टिकोइक एसिड लाइक एलिमेंट. ये टिकोइक एसिड क्या है? जो आपके मैमेलियन सेल हैं, जो आपके ह्यूमन बीइंग के जो सेल्स हैं, उसमें अटैचमेंट में ये रोल प्ले करता है.
ओके, देन आपका क्लम्पिंग फैक्टर, ये क्लम्पिंग फैक्टर एंड प्रोटीन ए, ये दोनों आपके डायग्नोसिस में काम आते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस में काम आते हैं। क्या डायग्नोसिस में काम आते हैं? सबसे पहला ये जो क्लम्पिंग फैक्टर है आपका, एक अभी हम फ्यूचर स्लाइड्स में आपको मैं बताऊंगा कि स्लाइड कॉगुलेज, it is important for the slight coagulase, okay? And then this protein A, the protein A you need to understand in vivas or in your NIT PG areas, they can ask you this thing, the co-agglutination reaction. First you need to understand this is a agglutination reactions, means कि this is the antibody, okay? And what it does, the protein A just attach to the this FC region of antibody. It does not attach to the main region, it attach to the FC region. So what it plays a role I will take in the general microbiology class. So here right now you just need to understand that this attaches to the FC region of IgG and it helps in diagnosis of Staphylococcus aureus and different organism also, and the reaction associated with it is co-agglutination reaction. Okay. Now there are certain toxins which are secreted by the bacteria. So there are different toxins. You need to understand. The first is the alpha, beta, gamma, delta. Okay. So what these hemolysins do? You need to understand that these hemolysins is for the hemolysis of RBCs, different RBCs, your sheep RBC, your rabbit RBCs, your human RBCs. देखो इसमें होता क्या है कि जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं RBCs, वो डिफरेंट हो सकता है। वो शीप अवेलेबिलिटी होती है तो शीप यूज करते हैं, अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन करते हैं, रैबिट है तो रैबिट करते हैं। सो ये हेमोलिसिस जो है बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसीज को हेमोलिसिस करता है, ठीक है। उसमें से आपको बस ये थोड़ा अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है। जैसे बीटा हेमोलिसिन ये क्या करता है आपको, ये ह्यूमन और रैबिट के जो आरबीसीज होते हैं ये उसको नहीं करता हेमोलिसिस, ठीक है। गामा हेमोलिसिन जो है ये तीनों को करता है, डेल्टा हेमोलिसिन ये तीनों को करता है, ठीक है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट क्या होती है कि ये हेमोलिसिन ना, आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये हॉट एंड कोल्ड फिनोमिना आपको प्रिफर करता है। यानी कि अगर आप इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखोगे तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, फिर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाओगे तो ये आपको रीएक्टिवेट हो जाएगा। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये याद रहना चाहिए गामा हेमोलिसिस। वो क्यों याद रहना चाहिए आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताता हूं। देखो एक टॉक्सिन होता है पीवी टॉक्सिन, जिसको हम पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन है और ये गामा हेमोलिसिस है, इसको हम साइनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन कहते हैं। यानी ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं और टॉक्सिसिटी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं। मीन्स की दीज टू टॉक्सिन्स जस्ट get interacted with each other and give more lethal toxicity. So mostly toxicity is dermatolytic, means कि एपिडर्मिस वगैरह को ब्रेक कर देता है। और ये जो टॉक्सिन्स हैं आपको अभी आगे जब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे तो ये सारे टॉक्सिन्स का रोल आपको पता लगेगा कि ये क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी आपको मैंने बता दी कि अल्फा एंड गामा हेमोलिसिस के रिस्पेक्ट में ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, दे जस्ट यूनाइट एंड व्हाट दे डू द एपिडर्मोलिसिस, वेरी लिथल एपिडर्मोलिसिस दे विल डू, एंड दे आल्सो नोन एज साइनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन। दिस वाज योर INI PYQ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन डिफरेंट टॉक्सिन आल्सो। So what we call it as a epidermolytic toxins, जिसे हम exfoliative toxin भी कहते हैं। ये भी आपका PYQ है NIT का। ये देखिए ये जो है क्या करता है, ये बुल्लस इम्पेटिगो कॉज करता है, बुल्लस इम्पेटिगो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बुल्ला ही बनते हैं, बुल्ला, ठीक है। जब आप डरमैट पढ़ोगे तो उसमें डिफरेंट तरीके की चीजें होती हैं, उसमें पस्ट्यूल होते हैं, बुल्ला होते हैं, इस तरीके के वेसिकल होते हैं। तो आपको वहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। तो उसमें से एक क्लासिफिकेशन होता है बुल्ला का। बुला ये इस तरीके का बनता है, इसमें पस भरा हुआ होता है, एंड ये मोस्टली जो कॉज होते हैं वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है आपका इसका कॉज होता है और उसे एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन कहते हैं।
ठीक है। और दूसरा टॉक्सिन कौन सा होता है? दूसरा टॉक्सिन होता है एंटेरोटॉक्सिन। जो एंटेरोटॉक्सिन होता है ये नाम का एंटेरो है, लेकिन जो आपका स्टेफिलोकोकस ऑरियस है ये जो टॉक्सिन है आपको पहले बना देता है, आउटसाइड बॉडी बनाता है। तो क्या होता है इसमें कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, कहीं हाईवे पे गए, कहीं भी गए आप जैसे, और हाइजीन मेंटेनेंस नहीं है वहाँ का, खाने का हाइजीन मेंटेन नहीं कर रखा, 2-3 दिन पुराना खाना आपको खिला दिया जो बना हुआ है, तो वहाँ हाईली चांसेस होते हैं आपको ये इस तरीके की फूड पॉइजनिंग होने का। ठीक है। तो कौन कौन से फूड आपको एसोसिएटेड होते हैं? वो होते हैं आपको रेड मीट, पोल्ट्री एंड क्रीमी डिशेस। ठीक, जो रेड मीट होता है या पोल्ट्री में एग हो गया, मिल्क हो गया, ऑल दीज फूड्स आर एसोसिएटेड विद दिस फॉर्मेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन्स। ओके, सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दे आर हीट स्टेबल। व्हाई दे आर लीथल? दिस वाज योर INI PYQ। ओके, सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ये आपका हीट स्टेबल होता है। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि आप 60-70 डिग्री टेम्परेचर पे भी जाओगे, इसको बॉईल करोगे, जो अपन जनरली कुक करते हैं जिस टेम्परेचर पे, वहां पे किल नहीं होता, यू कांट किल देम। तो दैट्स व्हाई दे आर लीथल एंड इंक्यूबेशन पीरियड इज वेरी शॉर्ट। इफ यू गॉट दिस इन्फेक्शन, सो यू विल गेट फूड पॉइजनिंग विद इन 6 hours। ओके, so this was the catchy. So what they asked in the INI, they have asked कि what nerve they have associated. It is a vagus nerve. जो vomiting center जो है अपना, जब आप NRT याद करोगे तो it's like कि vagus is the vomiting center and nerve is the vomiting area in your brain। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीज ये होगी। दूसरा है आपको TSTs, जो मैंने अभी आपको अपकमिंग स्लाइड्स में आपको अच्छे से आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस TSTs। तो TSTs में क्या है आपको? तो TST शॉक करता है आपको, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्टेफिलोकोकल एंड स्ट्रेप्टोकोकस दोनों करता है ये आपको कैच है। लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्टेफिलोकोकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये करेंगे। एंड दीज आर द टॉक्सिन, दिस इज TST1। और कुछ एंजाइम्स जो है आपको स्टेफिलोकोकस और भी रिलीज करते हैं, जैसे कि थर्मोन्यूक्लियस, कोगुलेज, DNase। ये एंजाइम, दीज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, इनका क्या रोल होता है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का रोल ये होता है कि दीज आर मोस्टली रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिंग स्टेफिलोकोकस। क्योंकि देखिए, एक तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, तब आप स्टेफिलोकोकस समझोगे। दूसरी चीज जो आप डायग्नोसिस कैसे करोगे, ये पहले से आपको प्रोवाइडेड है कि दीज आर द टॉक्सिन। उस टॉक्सिन्स को एसोसिएट करके हम उसका हेल्प लेके हम डायग्नोसिस करेंगे कि यार ये तो स्टेफिलोकोकस की तरफ जा रहा है। ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पैथोजेनेसिस। किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी डिजीज का अगर आप पैथोजेनेसिस पढ़ोगे तभी वो डिजीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो पैथोजेनेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर starting the pathogenesis, 1 minute I will take to revise what I told you in the virulence factor so that you can remember each and everything। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये पेप्टिडोग्लाइकन और सेल वॉल होते हैं इसमें। वायरुलेंस फैक्टर में देयर आर सर्टेन फैक्टर व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल। इन द सेल वॉल देयर आर पेप्टिडोग्लाइकन, वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन है सेल वॉल में, टिकोइक एसिड आर देयर, क्लम्पिंग फैक्टर एंड प्रोटीन A आर देयर। दिस क्लम्पिंग फैक्टर वी यूज इट फॉर द डायग्नोसिंग and it is used in slide coagulase, and these protein A, okay, we also use it for the diagnosis, and the diagnostic name of this is co-agglutination reaction, जिसे हम co-agglutination reaction कहते हैं। ये प्रोटीन A का मैंने आपको पूरा बता दिया था कि प्रोटीन A क्या करता है। ये एंटीबॉडीज होते हैं, उसके FC पोर्शन में जाके अटैच हो जाता है।